Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in the dynamic classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. Good morning to everyone. I think all are perfectly well. Okay, let's start the class. As you perfectly know that we are going to discuss about real numbers chapter 1 class 10th NCERT maths. This video is for class 10th high school students of CBSE board or ICSE board if your book is NCERT patterns. Okay, now let's begin the class. Okay, first you read this question perfectly. This is an example of your chapter first. Okay, first read it carefully. Okay, question is saying that show that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3. Okay, what I have told you, first read the question perfectly and then understand what this is saying, then solve the question. It's a very simple question. If you have watched before its before video, then you can do it perfectly. Okay, because I have told you about Euclid's division lemma. Yeah, we can say that Euclid division theorem, because this question is totally dependent upon that theorem. Okay, now let's begin how we are going to solve this. Let's watch. Solution. Solution. First, so that any positive odd integer is the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. It is saying that you have odd integers and positive odd integer. Integer number are those number which is not in point value, that's called integers, and it is asking about only positive odd integers. So what is odd integers? 1, 3, 5, 7, 9 and so on. That's for odd integers. Okay, at last you can understand it perfectly. It is saying that where q is some integer, where q is some integer, so we can write given what, given q is a some integer number. Okay, यहाँ पे लिखेंगे q is some integer number. What we can write? Q is equal to, integer means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is integer number. Now read the question. Any positive odd integer. So odd integers, so odd integers, what odd integers means, suppose x. Okay, odd integers 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. Okay, now applying Euclid's division lemma, what we can do? We will divide by 4 in this number.
Why? Because it is saying that odd integer is the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. If before q value is 1, then we divide by 1. If before q there is 2, divide by 2. Before q there is 3, we will divide by 3. So there is 4, then we are going to divide by 4 in these numbers. Okay, let's start. 4. It is a roughly work, so side go to the side. 4 divide into 1. 4 0 times 0, remainder 1. And now 3 4 0 times 0, remainder 3. And now 4 1 times, remainder what? 1. And now 4 2 times, 4 2s are 6, 1. 4 9, sorry, 4 1s are 4, that will be 3. Okay, and now 9, this is 4 2s are 8, carry 1. Okay, and now 11, 4 2s are 8, carry 3. What we see here, that there is remainder 1 1 and there is remainder 3 3 comprehensively. Okay, in now put these values on these formulas. Okay, dividend, what is dividend? 1. Dividend is 1 is equal to divisor 4, quotient 0 and remainder is 1. And now dividend is 3, divisor is 4, quotient is 0 and remainder is 3. Dividend is 5, divisor is 4, quotient is 1 and remainder 1. And here dividend is 7, divisor is 4, quotient 1 and remainder 3. And now this dividend is 9 and divisor is 4, quotient is 2 and remainder is 1. And in this dividend is 11, divisor is 4, quotient is 2 plus 3. In this, what we see, 4 is common, so we put 4, and 0 1 2 is what? 0 1 2 is q, because we know that q is some integer, so we can put the value of it, 4q plus 1. So what we can write? 4q plus 1, or this 4 is common, 0 1 2 is what? Some integers, and there is 3, 4q plus 3. Okay, look at this and look at this. So by this question, by this method, what we have seen that positive odd integers can be write in form of 4q plus 1 or 4q plus 3. Yeah, what we can write? We see by this that we can write this in form of 4q plus 1 or 4q plus 3.
अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। देखिए एक बार फिर से इस चीज को मैं रिपीट करता हूं आप सभी को, फिर से समझो क्या मैंने यहां पे आपको बताया, क्या मैंने यहां पे आपको समझाया। एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से आपको बता रहा हूं, एक बार आप अच्छे से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integer number, we can see what we can write, q is some integer number, q is some integer number। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्यों सम इंटीजर, मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूं, इस यहां पे क्वेश्चन ने पहले से ही बोल के रखा है कि वेयर q इज सम इंटीजर्स, सो व्हाट वी कैन राइट q इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 and so on, that's what positive integer number and which is the form of odd। now odd integers 1 3 5 7 9 11 13 b suppose it x। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जो मैंने कल की वीडियो में कराया था कि यहाँ पे जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करना रहता है उसके पहले जो डिजिट रहेगी, यहाँ पे क्योंकि पहले 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो इस पूरे फॉर्म में। ठीक है, जिसमें बोलेगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करेगा तो ऑड में 4 से डिवाइड कर दो, अगर इवन में बोलेगा तो उसमें डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे किससे आप, डिवाइड करोगे किससे आप, वहां अगर मैं बात करता हूं तो क्यू के पहले या जो भी यहां पे दिया रहेगा आर एस टी यू भी एनीथिंग जो भी दिया रहेगा उसके पहले जो भी डिजिट न्यूमेरिक डिजिट रहेगी उसी से आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड कर दोगे ना, ये इसको आपको वहां पे लिख के दिखाना नहीं है, ठीक है, डिवाइड कर दोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे उसके बाद इसको इसी फॉर्मूले पर रख दोगे। और यहां पर आप क्या देख सकते हो 0 1 2 क्या है, q है, तो मैंने कर दिया 4q plus 1 and 4q plus 3। यहां पे मैंने क्या लिखा है, bc by this that we can write in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। समझ में आया है ना, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और इस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। देखो ये जो एग्जांपल्स है ये एचसीएफ बेस्ड, मतलब कि एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि ये वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन रहता है, बट ये क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। बट जहां पे आपने क्वेश्चन को रट लिया वहीं से आप क्या करते हो, देखो अगर आपने इस क्वेश्चन को पूरा लर्न कर लिया और उसके बाद जो है अब एग्जामिनर क्या करता है, आपको आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता है, उसका पैटर्न चेंज कर देता है, तो वहीं पर आप क्या करते हो, वहीं पे आपको लगता है कि चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं। आपको करना क्या चाहिए, आपको जो और बहुत सारी बुक्स होती हैं अदर साइड की बुक्स, आपको उसको भी सॉल्व करते रहना चाहिए। सपोज अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए है आरएस अग्रवाल की, उसको भी आप साइड में करके एक तरह से सॉल्व करते रहो। आप एनसीईआरटी पैटर्न की बुक तो पढ़ ही रहे हो, आरएस अग्रवाल की बुक को भी आप अच्छे से सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल तरीके से पढ़ो और एक एक चीज जो भी ये क्वेश्चन कह रहा है ना उन सारी चीजों को नोट करते चलो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं शांति से। अ स्वीट सेलर हैज 120 kg बर्फीज एंड 130 kg बादाम बर्फीज, ठीक है। एक मिठाई वाला है, कौन है, एक मिठाई वाला है, सपोज करो वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है 120 kg बर्फी है, क्या है उसके पास, उसके पास भैया जी बर्फी है कितनी 120 kg, ठीक है, उसके पास 120 kg बर्फी है और बादाम बर्फी उसके पास है, क्या है, बादाम बर्फी है। बादाम बर्फी कितनी है 130 kg, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि स्वीट सेलर है वह सी वांट्स टू स्टैक द सेम नंबर, वो क्या करना चाहते, देखो सपोज करो आप अगर मिठाई का एक ट्रे होता है ना, चौकोर ट्रे सपोज करो आपके पास है, एक उसको अच्छे समझते हैं। सपोज करो जो मिठाई वाली है उसका एक बड़ा सा ट्रे है, क्या है, ये उसका एक मिठाई रखने का ट्रे, ठीक है, जैसा भी है। उसमें ये कह रहा है
कि सी वांट्स टू स्टॉक, वो उसको क्या करना चाहती है, सच ऐसे नंबर में स्टॉक करना चाहती है, सेम नंबर रहना चाहिए, मतलब कि जो बर्फी रखे वो सेम नंबर, मतलब कि बर्फी की स्टार्ट बने जितनी एक लाइन में जितनी बर्फियां रहे वो सेम रहे। सपोज करो यहाँ पे हमने क्या किया, बर्फी इसको हमने डाल दी यहाँ पे फटाफट, ये देखो उसने एक लाइन में बर्फी डाल दिया और मतलब कि सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने सेम नंबर में यहाँ पे ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि दे टेक द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, मतलब कि इतना बड़ा ट्रे, मतलब कि देखो सुनो, ट्रे बहुत बड़ा है, बर्फी को ऐसा रखना है कि वो कम से कम जगह ले। अगर सपोज करो आप इसको यहां ऐसे कर दोगे तो ज्यादा जगह लेगा, उसके बाद जो ट्रे की जो खाली जगह है इसको आपको छोड़नी नहीं है, यहां पर भी क्या करना है, इसको रख देना है। ये देखो सेम स्टॉक। उसके बाद ये देखो जो लास्ट वाली लाइन रहेगी उसमें भी सेम नंबर ऑफ बर्फीज रहेंगी, ठीक है। ये चीज देखो, क्लियर है ना। अब देखो मैं यहां पे आपको चीज बता रहा हूं, सपोज करो जो ये बर्फी रखी गई है ये कितनी है, बर्फी का जो स्टॉक है ये x है, क्या है, x नंबर ऑफ लाइंस यहां पे है, x नंबर का स्टॉक लगा हुआ है, माना मतलब कि जितनी भी बर्फी की संख्या कितनी है, x है। और ये जो लाइन है इसको मान लिया सपोज करो y है, ये क्या है, y है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये कह रहा है कि एंड सेम एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, ये तो हमने बर्फी रख दिया, और आप बादाम बर्फी की बात करते हैं तो उसको भी आप ऐसे ही सेम नंबर में रख दोगे, ठीक है। बादाम बर्फी भी आप ऐसे रख दो, ठीक है, जैसे इसको आपने रखा सेम। ये देखो इसमें एक चीज ये देखो, जो ये वाली लाइन है ये वाली, ये तो सेम रहेगी, जिस स्टॉक में आपने रखा है वही स्टॉक आपका यहां भी लगेगा, ठीक है। बादाम बर्फी आपकी, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, बाकी सॉल्व बहुत इजी तरीके से होगा, आपको समझ बहुत इजी तरीके से आने वाला है। ट्रे को सीधा करो भैया, ये सपोज करो यही है, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये अगर x नंबर है तो ये भी x नंबर होगा कि नहीं होगा, ये भी तो x नंबर ही होगा, लेकिन ये चीज जो होगी ये चेंज हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगा, यहां पे सपोज करो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सो यहाँ पे 4 है 5 लाइन, इसमें 3 ही 4 लाइन है, ठीक है। अब देखो एक चीज हम क्या कह सकते हैं, ये देखो ये जो हमारी बर्फी है, बर्फी इज 120 kg। अगर हमें मतलब कि बर्फी की नंबर निकालना है कितनी बर्फीज है, तो क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई अगर y में कर दें तो क्या ये निकल आएगी, बिकॉज ये टोटल कितनी हो सकती है 120 kg, और ये टोटल कितनी हो सकती है 130 kg। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, बर्फीज इक्वल टू x इंटू वाई, एंड बादाम बर्फीज x इंटू z। व्हाट वी फाउंड हियर 120, ये क्या है हमारी बर्फी, बर्फी इक्वल टू 120 इक्वल टू x इंटू वाई एंड 130, ये क्या है हमारी बादाम बर्फी, ठीक है। बहुत बर्फी खा रहे हो तो, ये कितनी है 130, ये क्या हो जाएगा x इंटू जेड। अब इसमें एक चीज आप क्या देख रहे हो, अब देखो हमें समझाना क्या चाह रहा था, ये जो x है क्या इसमें हाईएस्ट है कि नहीं हाईएस्ट है, x वाली जो लाइन है, x स्टॉक की लाइन जो है हाईएस्ट है, और इन दोनों में कॉमन भी है, हाईएस्ट है कॉमन भी है, और यहां पर 120 का भी फैक्टर है 130 का भी फैक्टर है। 120 का फैक्टर x क्या है, 120 130 का एक फैक्टर है ना, देखो दोनों में है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन है, और इसमें जो है हाई भी है, x की लाइन क्या है ज्यादा है 1 2 3 4, यहाँ पे काफी जगह भी है, देखो अभी आप ना, x क्या है हाई नंबर है, कॉमन भी है, फैक्टर भी है, क्या क्या है, हाई नंबर है, कॉमन भी है, फैक्टर भी है। क्या करना है हमें, HCF निकालना है। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसके द्वारा निकालेंगे, बाय यूक्लिड्स लेमा। तो अब यहां पर मैंने आपको इसलिए ये समझाना चाह रहा था कि यहां पे क्या करेंगे 120 और 130 का HCF निकाल लेंगे,
क्यों निकालेंगे? इस वजह से निकालेंगे क्योंकि जो x का नंबर आएगा वो क्या होगा? हाई होगा। एक बार आपको समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 1 से 2 सेकेंड में, ठीक है। सपोज करो आपने ले लिया, अब ठीक है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। भैया जी ट्रे हटा दो, ट्रे की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? देखो, ट्रे का काम खत्म, ट्रे की मिठाई गई, ठीक, बर्फियां गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें? 120 और 130 का HCF निकालना है। 120, 130 HCF। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या किया जाता है? छोटी डिजिट जो होगी, छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट में क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, ठीक है। देखो ये है 130, 1 टाइम्स लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 120, 0, 10, ये आ गया। अब इसको किस में लिखोगे आप? यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखोगे कैसे? बाई यूक्लिड्स division lemma. What we can write? We can write this डिविडेंड क्या है आपका? देखो यहाँ पे डिविडेंड दिया है 130, डिवाइजर कितना है? 120, डिविडेंड 130, डिवाइजर 120, क्वेश्चन 1 एंड रिमाइंडर इज 10। देखो मैंने क्या बताया है, आप यहां पर डिवाइड कब तक करते रहोगे? जब तक रिमाइंडर की वैल्यू क्या नहीं आ जाती है? 0 नहीं आ जाती है। क्या दिया? आर इज रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव न्यू डिविडेंड एंड डिवाइजर। अब इसमें न्यू डिविडेंड डिवाइजर कौन होगा? जो छोटा होगा वो डिवाइजर होगा, जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा। अब देखो यहाँ पे छोटा कौन सा है? बड़ा है 120, ये देखो क्या बन गया, और ये 10। अब 10 में डिवाइड कर दो भैया जी, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स कितना आया? 10, ये आ गया 20। अब क्या आ गया भैया जी? ये 10 2 20, तो ये तो पूरा 0 हो गया, आ गया रिमाइंडर 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब इसको फटाफट यूक्लिड डिवीजन लेमा में करो। डिविडेंड आपका 120 और डिवाइजर 10, क्वेश्चन 12 एंड व्हाट? रिमाइंडर इज 0। सो देखो यहाँ पे क्या चीज, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 आ गई, रिमाइंडर इज 0, सो व्हाट? 10 is the HCF value of 120 and 130। यहां पर where the number can be placed in each, आंसर क्या होगा आपका? 10 होगा। समझ में आया ना? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स बताए हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, ठीक है, अच्छे से समझो इसको, रटना नहीं, आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें हम सॉल्व करेंगे अब जो है अपनी एक्सरसाइज। एग्जांपल्स लगभग आपके एंड हो गए हैं, अब उसमें हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वे लोग जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, इससे पहले आपने मेरा वीडियो कभी नहीं देखा है, तो करना क्या है? सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, लेफ्ट साइड में आएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, चैनल को करना सब्सक्राइब और ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचने लगेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।